بنیاد جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یہ قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہے مشکل تو بچاتا تو ہے۔ میری بات سمجھ آئی جی؟ سوئے ہوئے مجمع تھوڑا سا بول دو، میری بات آپ کی سمجھ شریف میں آئی کو نہیں آئی؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے جی، اس میں کوئی لچک رکھے تو وہ پھر بندہ مومن نہیں رہ سکتا، یہ رہ سکتا ہے اللہ۔ اور یہ ایسا ہے مسئلہ توحید، اسے اس طرح سے اپنی گھٹی میں اور رگوں میں اتار لیجئے، یہ سمجھا کر اتار لیجئے خود کو کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی نے مار کھائی ہے اس مسئلے پر جی۔ اس ہر نبی کی ذات کے ساتھ قوم کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ کس وجہ سے مار کھائی ہر نبی نے؟ کہ وہ کہتے تھے اپنا ماتھا ایک کو جھکاؤ۔ حضور نے بھی یہی پیغام دیا کہ اپنا ماتھا، اس میں کوئی اختلاف رکھتا ہے؟ سنی تو اختلاف نہیں رکھ سکتا کیونکہ سنی سنت والا ہوتا ہے، سنی تو اختلاف نہیں رکھ سکتا کیونکہ سنی سنت۔ اس کے پیچھے دیکھیں نا پاور کیا ہے، پاور ہوتی ہے سنت، بولیے پاور ہے سنت، اور سنت کمزور نہیں ہوتی۔ میں جملہ بولنا پتری تو سمجھ آنا یا نہیں آنا؟ سنی کمزور نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی، سنی ضعیف نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی، اس لیے سنی ضعیف نہیں ہوتا۔ یہ ہوں گلاں رات 1 بجے دی نہیں ہیں، میں کی کر سکتا جو تہاڈے نال بھی پہلی ملاقات ہے۔ بہرحال میں جلدی بات آگے لیے چلتا ہوں، نکلتا ہوں زیادہ جملے آپ کے حوالے کرنے سے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بولیے۔ اور یہ بڑا ظلم ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رب میری سنتا نہیں ہے دعائیں، میں اس کے سامنے اس کو سمجھانے کے لیے، میرا آج تک اس طرح کا انداز نہیں رہا کہ میں کسی کو ڈنڈا برساؤں، میرا سمجھانے کا انداز یوں ہی رہا ہے کہ منت ہی کیا کرتا ہوں۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا نا، اس وقت کسی بڑے کو نہیں پتا تھا تو کس کیفیت میں ہے، سبحان اللہ۔ کسی پیر کو بھی پتا نہیں تھا تجھے کیا چیز چاہیے، وہاں جس نے تیری ضرورتیں بھی پوری کی ہیں نا، وہ دنیا میں بھی پوری وہی کرے گا۔ جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے رزق پہنچایا ہے، دنیا میں آنے پر بھی وہی تجھے۔ اور دیکھیے تو صحیح اس کی شان بے نیازی دیکھیے، اس کی شان ستاری تو دیکھیے، اس کی شان تو دیکھیے، وہ کیسا مالک ہے، کیسا خالق ہے۔ ماں کے پیٹ میں اس نے رزق پہنچانا تھا، رزق خون کی شکل میں تھا، خون ناپاک ہے تو اس نے منہ کے ذریعے سے رزق نہیں پہنچایا، ناف کے ذریعے سے رزق پہنچایا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ میرے بندے کا منہ ناپاک نہ ہو جائے۔ اب کیسا وہ بدبخت ہے جو دنیا میں آنے کے بعد اس منہ میں وہ جو رب نے ماں کے پیٹ کے اندر ناپاک نہیں ہونے دیا، وہ دنیا میں آ کے ناپاک کرے، حرام مال سے کرے، تب اس کی ناشکریوں سے کرے۔ تب توحید یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، ساری کائنات کو دینے والا اللہ ہے، داتا اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، معبود اللہ ہے، مسجد اللہ ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ایک میرا اللہ ہے۔
अकीदे खत्म नबुव्वत ये हकीकत है। वो बोलो सुनियो मेरे खत्म नबुव्वत हकीकत है। ये हकीकत को बयान करना फसाद नहीं होता। मेरे आका आखिरी नबी हैं, कुरान आखिरी किताब, कुरान के बाद किताब कोई नहीं। ये आखिरी उम्मत, इस उम्मत के बाद उम्मत कोई नहीं। मेरे आका आखिरी नबी, मेरे आका के बाद नबी। सारे बोलो नबी सराफा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कोनैन में कोई शानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। अब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों को फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। निक्शे पासे तरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्स और कमर है खजल, वो हंसी खूबता है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में आमिना का दुलारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। नारे तकबीर। मेरे आका के बाद कोई नबी है? सारे बोलो ऊंचा बोलो। इस अकीदे में लचक आ जाए तो बंदा मोमिन रह सकता है? नहीं रह सकता है बंदा मोमिन। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं, मेरे आका आखिरी नबी है, और आका का मकाम सारी कायनात से बुलंद है। मेरे आका के रुतबे को कोई पहुंच सकता? हमारा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। अल्लाह रखे एक तराजू, तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े में अल्लाह सारी कायनात को रखे, जमीनो जमा उसी पलड़े में, मकीनो मकां उसी पलड़े में, शजरो हजर उसी पलड़े में, बर्रो बहर उसी पलड़े में, नबातात जमादात अर्जियात फल्कियात उसी पलड़े में, बैतुल्लाह बैतुल मामूर बैतुल मुक़द्दस उसी पलड़े में, उलमा सुलहा अत्किया नौजवान अंबिया आदम नूह इब्राहीम इस्माइल मूसा ईसा यहया ज़करिया नूह हूद याकूब ज़ुल्किफ़ल इलियास उसी पलड़े में। दूसरे पलड़े में अकेला आमिना का लाल हो। मेरा ईमान है, मेरा मसलक है, मेरा नजरिया है, मेरे आका का पलड़ा सारी कायनात से भारी होगा। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं, मेरे आका आखिरी नबी है, और मकाम सारी कायनात से बुलंद है। मैं बहुत सारी बातें एक जुमला सिर्फ अर्ज कर देता हूँ, जो बाज़ौक़ हज़रात तशरीफ फरमा है उनके हवाले के, जो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं। अल्लाह करे मेरी ये बात उन तक पहुँचे। मैं उनके दरवाजे पर, ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने किस पैगंबर को छोड़ा और किसके लिए छोड़ा? जरा ज़े तो सोचो, खत्म नबूवत के मुनकिरों किसे छोड़ा, किसके लिए छोड़ा? हम ये तो ऐसा है कि हम मवाजना भी नहीं कर सकते, वो लफ्ज भी नहीं बोल सकते मवाजने वाला। किसके लिए छोड़ा और किसे छोड़ा, किसका दामन पकड़ा और किसके दामन से जुदा हुए हो? इसने, मैं सिर्फ एक जुमला, ताकि अल्लाह करे उन तक बात पहुंचे और फायदा हो जाए मेरा भी, उनका भी, आपका भी। ये आपके हवाले में जुमला कर रहा हूँ, आप आगे पहुंचाइएगा। आप मुबल्लिग हैं, सारे मुबल्लिग हैं। इसने कहा मैं महदी हूं, कभी इसने कहा मैं नबी हूं, कभी किसने कहा मैं मसीह मऊद हूं, और कभी कहा मैं महदी हूं। क्या कहा? मैं महदी हूं। सीरत की किताबें उठा लीजिए, जितनी भी सीरत की किताबें हैं। मैं बड़ा एक नाजुक सा लतीफ सा नुक्ता अर्ज करने चला हूं। सीरत की किताबें उठा लीजिए, तमाम सीरत की किताबों में हजरत मादी का तज़किरा लिखा है, और किसी एक बात में भी ये नहीं लिखा हुआ कि हजरत मादी खुद कहेंगे मैं मादी हूं। मेरी
बात समझे? यमन के उलमा और शाम के सुलहा हज के मौका पर मताफ में पहचान लेंगे इमाम महदी को और पकड़ लेंगे कि हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, और वो अपना दामन छुड़ाएंगे, वो अपना दामन छुड़ाएंगे और दामन छुड़ाकर मदीना पहुंच जाएंगे। ये मदीना पहुंचेंगे पीछे ढूंढते हुए, मदीना से वो फिर मक्का में आ जाएंगे और तीसरी बार मक्का में मताफ वाली जगह पर जबरदस्ती वो बिठाकर यमन के उलमा और शाम के सुलहा हजरत इमाम महदी के हाथ पर बैत करेंगे। वो खुद नहीं कहेंगे कि मैं महदी हूं। अब ये जो खुद कह रहा है मैं महदी हूं, यही इसके झूठा होने के लिए। और मेरी बात समझ आई? मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था कि बड़ा नाजुक सा जुमला है। पूरी सीरत की किताबों में उठा लीजिए, एक किताब में भी ये नहीं लिखा हुआ कि हजरत महदी खुद कहेंगे आओ मेरे हाथ पे बैत करो मैं महदी। तो अर्ज ये कर रहा हूं, मेरे आका आखिरी नबी हैं, इस पर अगर लचक आ जाए तो फिर बंदा मोमिन नहीं रहता। और ये लचक आएगी नहीं इंशाअल्लाह जब तक इस कौम के सीने में हुजूर की मोहब्बत है। कुफर इसी वजह से परेशान है कि इनके सीनों में हुजूर की मोहब्बत है, और ये मोहब्बत इंशाअल्लाह नहीं निकल सकती। क्या निकल सकती है? नहीं निकल सकती। सोज़ दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए और शौक़े तलब मोतबर चाहिए। वो मुजस्सर मदीने की गलियां अगर आंख काफी नहीं नजर चाहिए। उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बशे लब नहीं चश्मे तर चाहिए। मैं गदाए दरे शाह कौनैन हूँ, मैं गदाए दरे शाह कौनैन हूँ। शीश महल्लों की मुझको जरूरत नहीं, वो मुजस्सर जमीन पर ज़ेरे ज़मीन मुझको तैबा में एक अपना घर चाहिए। अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह हुजूर से प्यार नसीब फरमाए। और याद रखिए एक जुमला मैं कहा करता हूँ, काफी दिनों के बाद बात फिर ज़हन में आया, कहने लगा हूँ, नमाज फर्ज है। जिन्नते है ओ ते बोलो सारे दे। अच्छा पढ़ियां विचों 5% नहीं होनी है। नमाज पढ़िए, अपनी ईमानदारी से बताइए नमाज क्या है? सारे बोलो तो अर्ज करो क्या है? इस वक्त जिन्होंने पढ़ ली, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन पर इशा की नमाज फर्ज है। इशा की नमाज फजर की नहीं। अभी कोई बंदा उठे और फजर की नमाज शुरू कर दे, हो जाएगी? जो भी आने वाली है फजर हो जाएगी। रोजे फर्ज हैं लेकिन इन दिनों में नहीं, इन दिनों में ज़कात फर्ज है कि नहीं है? आपके पास माल आ गया, बहुत सा माल आ गया, करोड़ों रुपए आ गया, ज़कात नहीं। जब तक 1 साल आपकी मिल्कियत में न रहे। मेरी गल्ला समझ आ रही है को नहीं आ रही है? जब तक 1 साल आपकी मिल्कियत में न रहे, आपने ज़कात अदा कर दी और अचानक से बहुत सा माल आपके पास आ गया, हज फर्ज नहीं जब तक आपकी जिंदगी में जिलहज नहीं आता। जिलहज नहीं आता। नमाज फर्ज है वक्त आने पर, रोजा फर्ज है वक्त आने पर, हज फर्ज है वक्त और माल आने पर, ज़कात फर्ज है वक्त और माल आने पर, लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा फर्ज है सांस आने पर। मोहब्बत मुस्तफ़ा फर्ज है, आपकी सांस चल रही है, हुजूर से मोहब्बत फर्ज है। हुजूर से मोहब्बत, बोलिए बोलिए, हुजूर से मोहब्बत फर्ज है। और मोहब्बत भी कैसी कैसी मोहब्बत फर्ज है? प्यारे आका फौजियों की लाइन चेक कर रहे हैं,
मुजाहिदों की लाइन चेक कर रहे हैं। चेक करते करते एक मौके पर प्यारे आका पहुंचे तो प्यारे आका ने देखा कि एक 12 साल का बच्चा अपने पंजों के बल पे अपनी एड़ियां ऊंची करके खुद को शामिल करना चाहता है। प्यारे आका एक लम्हे के लिए सोचते हैं बहुत छोटा है, इसे घर वापस भेज दूं। फिर ख्याल आया चलो खड़ा रहे, किसी जख्मी की पट्टी करने के काम आ जाएगा, किसी को पानी पिलाने के काम आ जाएगा, खड़ा रहे। प्यारे आका आगे बढ़े तो देखा उससे 2 साल कम 10 साल का बच्चा अपने पंजों के बल पे एड़ियां ऊंची करके अपने आप को बड़ा जाहिर कर रहा है। प्यारे आका फरमाते हैं तू बहुत छोटा है, घर वापस चला जा। हुजूर से मोहब्बत की बात बताने लगा। प्यारे आका फरमाते हैं घर वापस चला जा। वो रोके कहता है या रसूलल्लाह घर जाके माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। या रसूलल्लाह आपने उसे इजाजत दे दी, फरमाया तुझसे बड़ा है। या रसूलल्लाह मेरा भाई है, फरमाया मैं जानता हूँ तुझसे बड़ा है। या रसूलल्लाह ये भी बात जानता हूँ मुझसे बड़ा है, लेकिन या रसूलल्लाह ये तो जिहाद पे जाने की बात है ना, बड़े छोटे की क्या बात है, ये तो जिहाद पे जाने की, जंग की जाने की बात है। या रसूलल्लाह है तो मुझसे बड़ा, ताकत में मुझसे ज्यादा नहीं है, बेशक आप मेरी और उसकी कुश्ती करा लें। प्यारे आका ने फरमाया ठीक है आजा, मुआज तो भी आजा, मुआवज तो भी आजा। कुश्ती, और आपको पता है जब पहलवान आते हैं ना करीब एक दूसरे के कुश्ती करने के लिए, पहले जप्पी डालते हैं। जब जप्पी डालने की बारी आई, दोनों एक दूसरे के करीब आए, कैसा वो मंजर, कैसा वो मंजर। मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ, प्यारे आका ने फरमाया सहाबा इन्हें देखो, अबू बकर उमर इन्हें देखो, हमजा इन्हें देखो, अली इन्हें देखो, ये तो हुजूर ने फरमाया ना इन्हें देखो। और मेरा तखय्युल ये है, मेरा विजदान ये है, रब ने भी कहा होगा फरिश्तों इन्हें देखो। तुमने कहा था इंसान ना बना, और मैंने नहीं कहा था कि जो मैं जानता हूँ इन्नी आलम मा ला तालमू, वो तुम नहीं जानते हो। अब दोनों करीब आए, जब भी डालने लगे तो छोटे ने बड़े के कान में कहा भैया तेरा तो काम बन गया, हुजूर ने इजाजत दे दी, अब ऐसा तो नहीं हो सकता हुजूर अपना हुक्मनामा वापस ले लें, तू जानबूझ के नीचे गिर जा, तेरा बिगड़ेगा कुछ नहीं, मेरा सब कुछ बन जाएगा। हुजूर से मोहब्बत की बात करने चला हूँ, हुजूर से मोहब्बत। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं जब बदर का मैदान सज गया तो मैंने देखा मेरी एक जानिब 10 साल का बच्चा, एक जानिब 12 साल का बच्चा। मैं परेशान हो गया, इनके साथ मैं क्या करूंगा। मेरे साथ को कड़ियल जवान होते, वो बहादुर होते, वो तगड़े होते जवान, ये 2 बच्चे हैं। अभी ये मैं सोच ही रहा हूँ कि इधर से एक बच्चे ने मेरी कमीज खींची और कहता है चचा जरा ये तो बचा अबू जहल कौन है। मैं अभी उसे कोई जवाब नहीं दे पाया, दूसरी जानिब से दूसरे बच्चे ने कमीज खींची, चचा उसे नहीं पहले मुझे बता अबू जहल कौन है। अरे तुम क्या करोगे, वो तो उस कौम का सरदार है, वो तो बड़ा है, उसके इर्द गिर्द बड़ा पैरा है, वो तो इस कौम का, इस उम्मत का फिरौन है, तुम क्या करोगे। कहने लगे चचा कसम खाई है, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी को। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं मैंने यूं उंगली का इशारा किया, वो फलां घोड़े पर, वो फलां घोड़े पर। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं मैंने यूं उंगली का इशारा किया, वो फलां घोड़े पर, वो ऊंची पग वाला। अभी मेरी उंगली वापस नहीं आई, ये दोनों अबाबील प्रवास कर चुके थे। एक ने जाके घोड़े की टांगों पे वार किया, घोड़ा गिरा, अबू जहल गिरा, दूसरा सीने पर बैठ गया, उसकी गर्दन सर, उसका सर तन से जुदा करने के लिए। और यही तो अबू जहल को दुख था कि मुझे किसी बड़े ने नहीं मारा, इस उम्मत के हुजूर के 2 छोटे छोटे सिपाहियों ने मारा। हुजूर से मोहब्बत फर्ज है, हुजूर से मोहब्बत फर्ज है, हुजूर से मोहब्बत फर्ज है, इसमें कोई तो राय नहीं हो सकती है। और मोहब्बत भी ऐसी, आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि मेरे साथ ऐसी मोहब्बत कर कि ऐसी मोहब्बत तुझे वालिदैन से भी न हो, मेरे साथ ऐसी मोहब्बत कर कि ऐसी मोहब्बत तुझे अपनी औलाद से भी न हो, मेरे साथ ऐसी मोहब्बत कर कि ऐसी मोहब्बत तुझे अपने माल से, अपनी
جان سے بھی نہ ہو، جان سے بڑھ کر، سب کائنات سے بڑھ کر حضور سے محبت ہو، اس لیے کہ میرے آقا آخری نبی ہے، میرے آقا پوری امت کے لیے ایسے ہیں، ایسی جان سے بڑھ کر ہیں کہ حضرت تھانوی نے لکھا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا، علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا، اور ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو حضرت تھانوی کے جملے کو تولے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے آگ میں کوئی چھلانگ لگائے حرام ہے، نہر میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر آپ کا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سر پہ کف سر بلند، سر پہ کف سر بلند، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا علامہ اشرف علی تھانوی، نعرہ تکبیر۔ میرے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے۔ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا، تو کجا من کجا۔ آقا جیسا کوئی بھی نہیں۔